Assalamu alaikum, dear students. Students, as you know that we are here in the HTML unit. Now, today our topic is terminology of web development. Okay. Now, terminology of web development. First terminology is what is protocol. What is protocol? So, protocol as I have discussed earlier in the network unit, that these are the set of rules for exchanging data from one computer to another. So we can say that here is the same case in HTML. So we can say that we will write here, it is a language of the network. It is the language of the network. So in network, it governs the rules to exchange information with very little error. Okay. Now we will write here, it is the language of the network. It is the language of the network. It is the language of the network. Okay. So protocol is a set of rules that govern computers to exchange information. जैसे मैंने आपको नेटवर्क में पढ़ाया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज यहाँ पे प्रोटोकॉल है. तो प्रोटोकॉल क्या हुआ, ये मतलब कुछ तरीके हैं जिससे हम डेटा मतलब मोबाइल से या कंप्यूटर से सर्वर पे भेजते हैं या सर्वर से वहां से हम गेट करते हैं. जैसे आप इंटरनेट चला लेते हो, वहां पे भी कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल्स. तो वी कैन से दैट हर किसी सिस्टम में प्रोटोकॉल्स अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं. जैसे आप स्कूल चले जाते हो, वहाँ पे प्रोटोकॉल्स है. शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, वहाँ पे भी प्रोटोकॉल्स है. वहाँ पे किसी होटल में चले जाते हैं, वहाँ भी प्रोटोकॉल्स है. तो इस तरीके से हम कहेंगे प्रोटोकॉल. सो इट इज द सेट ऑफ रूल्स. इट इज द सेट ऑफ रूल्स दैट इट इज द सेट ऑफ रूल्स. It is a set of rules that govern the computers to exchange information with very little errors. Very little error. Okay. Now this is the protocol. Now second terminology is these are the terms. Terminology stands for the terms. Okay. Now कुछ terms है, definition है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आज. So that is called the terminology. Now second one is the HTTP. HTTP. So HTTP stands for hypertext markup language. Hypertext markup language. Okay. Hypertext, HTTP is the set of rules for transferring files. So we can say that what is hyper? Simply we can say the text. I have written here, this is the text, but when I will write here hyper stands for it will include audio files. This text will include the video files. This text will include the images and multimedia file. That is called as the hypertext markup language. No, this is called as the hypertext transfer protocol. Okay, transfer protocol. Hypertext transfer protocol. So we can say that HTTP is the set of rules for transferring files. These are the set of rules. These are the set of rules for transferring files. Text, audio, video, image, and other multimedia files. Now third terminology is the WWW. What is WWW? Third is the WWW. It stands for World Wide Web. WWW is the root of the websites. It makes available information from over 4 million computers around the world. So we can say that जब भी आप कोई वेबसाइट देखेंगे तो सबसे पहले आप लिखते हो वहां पे www. It is a world wide web. So it is the root of the websites.
It makes available information from over 4 million computers around the world. It is an internet based global information system. ये इंटरनेट बेस्ड है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन इसी में होती है, और ये मतलब around the world. Okay, now we can say that a web page, www, it is a root of the websites. It is the root of the websites. It is the internet based global information system. Global information system. Okay, it makes available information from over 4 million computers around the world. So www, it stands for World Wide Web. So it is the root of the websites. It is internet based global information system. अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है, और ये 4 मिलियन कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड जो है अवेलेबल करता है. ठीक है. नाउ यहाँ पे फोर्थ वन इज द वेब पेज. वेब पेज क्या होता है? फोर्थ टर्मिनोलॉजी इज द वेब पेज. क्या होता है वेब पेज? जैसे सिंपली हम पेज कहेंगे, टेक्स्ट पेज, तो टेक्स्ट उसमें टेक्स्ट होगा, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे वेब पेज. वेब पेज क्या हुआ? वेबसाइट पेज. फुल फॉर्म ऑफ, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेबसाइट पेज. तो यहाँ पे वेब पेज हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो फुल फॉर्म इसकी वेबसाइट पेज, वेबसाइट का एक पेज. तो यू कैन सी दैट इज अ कलेक्शन ऑफ, इसमें उस पेज में क्या क्या होता है. अगर आप फेसबुक का पेज देखेंगे या कोई वेबसाइट का पेज देखेंगे, उसमें इमेजेस भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है. तो वी कैन से दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ, it is a collection of text, audio, graphics, video, एटसेट्रा. बहुत सारा कुछ उसमें डेटा होता है वेब पेज में. लेकिन एक वेबसाइट एक ही वेब पेज से नहीं बनेगी, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं. तो द लार्ज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द www आर कॉल्ड एज वेब पेज. उनको वेब पेजेस हम कहेंगे. तो उसी से जो ये वेब पेज है, इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट. जो ये वेब पेज है, ये HTML डॉक्यूमेंट है. HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट है, विच इज रीड बाय वेब ब्राउजर्स. ये वेब पेज क्या है? ये वेब ब्राउजर से हम खोलते हैं, which is read by web browsers and is displayed as a web page. तो उसी ये जो एक्चुअली पेज एक है, जो मतलब खुलता है किसमें? वेब ब्राउजर में. वेब ब्राउजर यूसी ब्राउजर भी हो सकता है, गूगल क्रोम भी हो सकता है, बहुत सारे ब्राउजर्स आजकल अवेलेबल हैं, तो उनमें ही चल सकता है वेब पेज. तो दिस इज द वेब पेज है. नाउ फिफ्थ वन इज द TCP/IP. क्या होता है TCP/IP? TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. पिछले साल एग्जाम में आया था, व्हाट डज द TCP/IP स्टैंड्स फॉर? तो नीचे चार ऑप्शंस दिए गए थे: ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बोथ और नन. तो इसमें आएगा बेटा ट्रांसमिशन कंट्रोल, ट्रांसफर नहीं आएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके. नाउ यहाँ पे हम कहेंगे इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट. ये इंटरनेट के लिए अपना कुछ प्रोटोकॉल है, जिसको बताते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो इट इज द कम्युनिकेशन, इट्स अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल for internet
or internet. Okay, now sixth one is the multimedia. मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया जैसे आप मल्टीमीडिया का पेज देखते हैं, उसमें मल्टीमीडिया की फाइल देखते हैं, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो। जैसे आप कार्टून नेटवर्क देखते हैं या कोई और फाइल टीवी में देखते हैं, तो उसमें साउंड भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन वीडियोस भी होता है कॉम्बिनेशन में, तो दैट इज द मल्टीमीडिया फाइल। तो वी कैन राइट हियर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ sound, graphics, animation and video. Okay, now okay beta, thank you for today.